अंडरस्टैंड कि हाँ आप लोग क्लास में हो. मोस्ट ऑफ यू हैव स्विच ऑफ योर कैमरा. अगर इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. Except Meher, I can't see anybody switching on their camera. So Diya and Adit, it's a request. And once Sanvi is not there, I think. Okay, it's okay. Fine, fine Diya, well done. So last class में मैंने for example suppose if I ask you how to draw under root 26 on the number line. So हम लोग क्या करेंगे? First we will try to divide, find the nearest square of under root 26. That is under root 25. So what we can do is we can draw 25 centimeter, means under root 25, that is 5 centimeter we can draw, and this is under root 1 which is 1 centimeter. So suppose we draw a triangle. Suppose we draw a triangle whose base is 5 centimeter, whose perpendicular is 1 centimeter, then this is going to be under root 26. Then after that we will put a compass and we will draw a line, and this is the radius. Under root 26 क्या होगा? एक रेडियस होगा जो इस एक्सटेंडेड लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा. एंड इफ वी आस्क व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस O to P, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 26. ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर लाइन पे रैंडमली सोच के एक मैंने अप्रोच बताई थी आप लोगों को कि कैसे हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को शो करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू माइट हैव बीन नोटिंग दैट ऑल द नंबर्स आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. अंडर रूट 26 एक पॉजिटिव इंटीजर है. सपोज आई आस्क एनीबडी हाउ टू ड्रॉ अंडर रूट 5.5 ऑन द नंबर लाइन. अंडर रूट 5 तक तो ठीक था, पर अंडर रूट 5.5 आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी. बोला एक तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर भी डेसिमल. समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटीजर्स के स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं, जब हम 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है. लेकिन जब हम डेसिमल लेके आ जाएंगे तो कहानी मुश्किल हो जाएगी. तो अगर हम ये वाली कहानी सीख लेते हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम किसी का भी कोई भी रैशनल नंबर लाइन पे शो कर देंगे. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आराम से समझेंगे. लेकिन उसको समझने से पहले 8th क्लास का कुछ रिवीजन का टॉपिक है, वो आप लोगों को आना चाहिए. तो मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था, आपको याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये प्रॉपर्टी याद है आपको? यस सर. इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते थे दिया? वी टुक कॉमन. सपोज ए नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय b and the same number is being multiplied by d, so what we can do is we can take a common from both of this and then b plus d. Wonderful. Sanvi has come? Yeah. Wonderful. Okay. So our princess has come. So a times b plus d, सबको समझ में आ रहा है ये? Yes. Okay. Now if I tell you what is a plus b whole square. So a plus b whole square means, please understand this, and I'm writing it with a different color. Okay. Suppose I ask you what is 2 into 2. So this is 2 square. So a plus b square means we are going to multiply a plus b into a plus b. Is it clear to you? So I'm writing with a different color. A plus b Into multiplied by a plus, I'm sorry, a minus, right? no, a plus b dear. Oh yeah, correct. A plus b. Okay, a plus b is going to be multiplied by a plus b. Now what will happen? First this a will be multiplied by this a. A square. Yes, very good. So I will write a into a. Please understand, I am writing the color as well so that nobody gets confused.
then I have to write plus sign. Plus sign is of no, this plus sign is of blue color. This should be in blue color, because I have written this plus sign here. Now this A will be multiplied by this B. Are you getting it? So A is being multiplied by B. Then what will happen? Then I will write this plus sign. Can you see this? A मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, A से भी मल्टीप्लाई हो गया, B से भी मल्टीप्लाई हो गया. अब B की बारी है, तो B मल्टीप्लाई होने से पहले क्या साइन है? प्लस साइन. सो वी विल राइट प्लस, and then B will be multiplied by A, so we will write B into A. I am going to write in blue color, and then I am going to write plus. Plus means I am going to write this plus. Why? Because अब B जो है B से multiply होगा, so we will get B into B. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? Now what is A into A? A into A is A square. A into B is AB. B into A is BA. B into B is B square. So that means we are going to get A square plus 2AB plus B square. Is it clear to everybody? यहां तक सबको क्लियर है मेहर? यस सर. ओके, सबको पता था ये प्रॉपर्टी? सबको पता है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एक बार सीख लो. नाउ व्हाट इज A माइनस B होल स्क्वायर? सो A माइनस B होल स्क्वायर मीन्स दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ एल्जेब्रा. सो वी विल राइट A माइनस B मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B. स्क्वायर मीन्स A माइनस B दो बार मल्टीप्लाई होगा. नाउ सी व्हाट विल हैपन. First this A is going to multiplied by this A. So when A is going to be multiplied by A, we will write A into A. Then I am going to put a minus sign. Minus sign of what? So minus sign this blue color. Okay. Now this A is going to be multiplied by this B. So we will write A into B. A into B. Then I am going to write this minus sign. This minus sign will be here. So minus sign, that minus sign is in green color. So I am writing minus. Then B is being multiplied. B is going to be multiplied by this A. So B multiplied by A. And then minus into minus. This minus into this minus is going to be plus. सबको समझ में आ रहा है? Minus into minus is plus. So we are going to get B into B. So one B of green color and one B of blue color. Everybody getting it? So this is going to be A square minus AB plus B square. So minus minus means they are going to be added. So A square minus 2AB plus B square. This is the first identity, algebraic identity. This is the second algebraic identity. सबको पता है ये ऑलरेडी? फिर भी मैंने सबको बता दिया. Is it clear, आदित्य? यस सर. ओके. नाउ अब यहां से खेल शुरू होता है. ध्यान देना बेटा. मैं इसको लिखूं बेटा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. ओके. x प्लस 1/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले हो जाएगा, आप इस 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले लो ब्रैकेट में. ओके. अब अंदर ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर. x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सबको क्लियर है? कोई डाउट कि सर ये कैसे आया? ये हमारा A है, ये हमारा B है. तो A स्क्वायर यानी कि क्या हो गया हमारा? x स्क्वायर. 2AB मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1, और B स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर. समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट किसी को? बोलो. तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है सबको? दिया? एनी डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट अप टू हियर? नो डाउट? ओके, नाउ व्हाट इज x माइनस 1/2 होल स्क्वायर? आदित्य बताओ क्या होगा? 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2x प्लस 1। plus ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इन दोनों रिजल्ट्स को मैं सेपरेटली यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, और मैं चाहूंगा अब आप लोग भी लिख लो। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सानवी? No, sir. ओके No, sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस। और ध्यान देना बेटा, मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ a माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखना, वी विल हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सपोज दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, ओके, एंड आई एम राइटिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई तकलीफ कि सर ये कैसे आ गया, बता दो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो? आगे बढ़े? No, sir. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने डिनोमिनेटर को 4 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड व्हेन दिस माइनस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड 2x एंड 1, दे आर गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, 1 will be cancelled, 2x and 2x will add up and they will become 4x by 4, and ultimately this is going to be x. I want all of you to note it down. यहां से ये और ये फटाफट से लिख डालो, मैं टाइम दे रहा हूं, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही सबका हो जाएगा सब मुझे बता देंगे कि सर हो गया है। एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो आपने लिखनी है, वो इक्वेशन ऊपर की, उसके नीचे सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्शन करोगे राइट साइड में लिखोगे, वो एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए था, लेकिन आपका आंसर x आना चाहिए। और सब लोग अपनी नोटबुक में करके देखो कि आप लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेसिक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 1 और 2 का मैंने यूज़ किया है। एक सिंपल सी इक्वेशन ली मैंने, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपैंड किया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, उसको एक्सपैंड किया, x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर में से। जब मैंने सब्ट्रैक्शन, हाँ बोलो बोलो आदित्य। सर हम परपेंडिकुलर मेथड, स्पाइरल मेथड एंड सेमी सर्कुलर मेथड से करेंगे लाइन प्लॉट। ये वही सेमी सर्कुलर मेथड ही चल रहा है बेटा, उसको समझा रहा हूँ मैं आपको कि वो होता कैसे है। सर बाकी 2 कब करेंगे? बाकी तो बता दिया मैंने आपको लास्ट क्लास में।
स्पाइरल मेथड कोई मेथड ही नहीं है, वो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया वही मेथड है। जैसे मैंने √2, √3, √5, √7, √50 ये सब बताया था ना, यस सर। वो पहला मेथड है। बुक में 2 मेथड दिए हुए हैं, एक पहला मेथड दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक दूसरा मेथड है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेमी सर्कुलर ओके मेथड। सर। ठीक है, तो उसकी बुक में बुनियाद नहीं दी गई है, यहाँ पे बुनियाद से बताया जा रहा है आपको, बेसिक से बताया जा रहा है कि ये कैसे पॉसिबल होता है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए कि हाँ मैंने We have ऐसे to only write that 1, 2 and all, right? Not the Yes. previous, not the one which is on the side, right? नो 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 नो, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। Okay, fine. ताकि वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था कि किसी को अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं याद है तो उसको भी याद आ जाए। अगर सबको याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, पर इतना पक्का लिख लो। क्योंकि अगर आप इस तरीके इस चीज़ को अगर आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ, अभी देखना जब आप इसको लिख लोगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम सेमी सर्कुलर मेथड से किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ एक ही मेथड से। सो सर हम परपेंडिकुलर मेथड करेंगे। ये वही मेथड है बेटा, परपेंडिकुलर। देखो नाम से कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर मेथड ही, मतलब परपेंडिकुलर मेथड में क्या आप जानना चाहते हो, क्या आपने पढ़ा है उसमें अब तक जो परपेंडिकुलर मेथड पढ़ा आपने? सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। किस में, स्कूल में? सर हाँ सर, आपने एक मेथड करा रखा है वो मुझे ज्यादा इजी लगा जो सर करा रहे हैं उससे, लेकिन सर बोल रहे हैं कि वो भी करना पड़ेगा जो मैं करा रहा हूँ। तो वो मेथड अब बता रहा हूँ ना मैं, अब उस मेथड को ही बता रहा हूँ जो दूसरा मेथड है। सर परपेंडिकुलर वन। अब मुझे नाम नहीं पता उसका। ओके सर। ठीक है, देखो आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि आप इसको बना दो, तो आपने बना देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है Sir, yesterday what happened, he said you need to make a ray of any unit. Let's suppose take 1 unit. Sir, I took 1 unit as 1 centimeter because it is not defined, it can be taken as any length. यस। Then he started saying, why have you taken 1 centimeter? इस पे मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है? ये स्कूल में सर ने बोला आपके? Yes sir. क्या बोला उन्होंने कि आपने 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यों लिया है? Yes sir. अच्छा, तो आपने उसमें मेंशन करना चाहिए था ना, आई एम टेकिंग 2 स्केल लिखना चाहिए था आपको, स्केल। अब बिना स्केल लिए अगर आप मेंशन करोगे तो आप उनको रीज़न नहीं कर पाएगा कि मैंने क्यों किया ऐसा। Sir, I said, sir, you said to take 1 unit as the length of 1 unit is not defined. We can take it as anything like 1, 2 or something. हाँ. You said, but you will not take it as any other length. ओके, जो मेथड अब मैं बताने जा रहा हूँ उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें जो सर बोल रहे हैं वही सही है। ठीक है, So we have to take 1 unit. नहीं, जो अब बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। सबने लिख लिया ये? 2 मिनट 5 मिनट हो गए? 1 minute. अरे सानवी यार, 1 minute. यार 2 मिनट दिया था, इट्स 5 मिनट्स नाउ। 1 मिनट तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा है। आदित्य आपने लिख लिया? Sir, just a little bit late. अरे क्यों, तुम राजेंद्र प्रसाद हो क्या, देखते ही याद हो जाता है? चिट्ठी तो नहीं, ऐसे किताबों को ऐसे ऐसे करते और याद हो जाता है? No sir. रोबोट पिक्चर में वो चिट्ठी था ना, ऐसे बुक को ऐसे ऐसे करता था और शुरू हो जाता था। एक वेब सीरीज थी असुर, उसमें भी वो ऐसे ऐसे पन्ने पलटता और याद हो जाती है बुक। तो तुम में से कोई असुर तो नहीं है? हमारे पास तो देवियां हैं, देवियों और सज्जनों। एक सज्जन है, बाकी 3 देवियां हैं। चलो शुरू करें। सानवी हो गया? ओके, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, मैं समझ लेता हूँ कि हो गया। Yeah, done.
तो अभी तक जो हमने सीखा इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो ध्यान से समझो आप, ठीक है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं वो स्टेप करूँगा ना तो तुम लोगों के नॉर्थ गुम हो जाएंगे, तुम लोग ढूंढने लग जाओगे सर ध्रुव तारा किधर है। तो नॉर्थ ना गुम हो इसलिए मैं पहले से समझा देता हूँ तुमको। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर मैं हाइपोटेन्यूज बना दूं x प्लस 1/2, मैंने हाइपोटेन्यूज बना दिया x प्लस 1/2, और बेस बना दूं बच्चों x माइनस 1/2, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा दोस्तों अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा कि नहीं? यस सर। तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अभी भी क्या आया था हमारा? x आया था। कितना आया था? Yes. x आया था ना। Yeah. तो ये भी क्या आएगा? अंडर रूट x, ठीक है। अब ध्यान देना, हम शुरू करते हैं बनाना अंडर रूट, किसका स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, अपने मोबाइल में सब लोग 5.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। मुझे बताओ 5.5 का स्क्वायर क्या होता है? देखो ध्यान से, तो 5 6 जा 30 और 25, तो 30.25 होता है। 30.25 समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो अंडर रूट 30.25 अगर हम बनाएंगे तो ये आएगा 5.5, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो और छोटा नंबर लेते हैं हम लोग। मुझे बताओ बच्चों 2.4 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 5.76, ठीक है। कितना होगा? 5.76। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं अंडर रूट 5.8। क्या बनाने जा रहे हैं? अंडर रूट 5.8। अंडर रूट 5.8 आना कितना चाहिए? 2.4 आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिया एंड सानवी, सब लोगों को समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? मैंने पहले से ही एक नंबर का स्क्वायर निकाल लिया और मैं उसी नंबर का स्क्वायर रूट बना रहा हूं, ताकि बनाते समय हम ये चेक कर ले लास्ट में कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो सही है। ठीक है? Yeah. ठीक है, या इससे भी बड़ा नंबर लेना है? बताओ, या ये ठीक है? 2.4 ठीक है ना? 2.4 आएगा। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक, हाँ, अब सब लोग अपनी अपनी नोटबुक उठा लो और मैं जैसा बताते जाऊंगा वैसा करते जाना है सबने, ठीक है? Yeah. ओके, तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे अपनी नोटबुक में 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। कितनी लाइन खींचेंगे? 5.8 सेंटीमीटर की। I'll come back in a minute. ओके, सारे के सारे बच्चे अपनी नोटबुक में 5.8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। और मैं क्योंकि 2 सेंटीमीटर का लूंगा तो 5.8 का डबल मैं 10.6 खींच लूंगा, क्योंकि मेरा कंपास काम नहीं करता उस पर। या मेरी तो लाइन खींची हुई है, चलो मैं इसी को यूज करूंगा। वी आर गोइंग टू ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 5.8 ऑन द नंबर लाइन। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सब लोग समझ लो, क्वेश्चन है शो स्क्वायर रूट 5.8 ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडर रूट 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो स्केल से। खींच ली सबने? सर कितने सेंटीमीटर की? बेटा जितने सेंटीमीटर की बोला गया है, अंडर रूट 5.8 ही पूछा है ना आपसे। यस सर। तो 5.8 सेंटीमीटर की ही लाइन खींच दो। ओके। सबने खींच ली? जब सबका हो जाए तो बताना। Sir, done. डन। Sir, how much centimeter line we have to do? बेटा अंडर 5.8, बेटा जितने सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट निकालना है उतने ही सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। 5.5.
जितने सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट निकालना है उतने ही सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है. Yeah, done. डन. Yeah. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, क्या नाम, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, हम उसका नाम रख देते हैं. उसका नाम रख दो तुम लोग. क्या नाम हो जाएगा? ए बी. क्या नाम हो गया? ए बी. AB. नाउ ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन. तो हम लोग कंपास को ए पे रखेंगे. मोर देन हाफ, हाफ यहाँ पे कहीं होगा अंदाजे से. मोर देन हाफ लेके एक आर्क हम ऊपर बनाएंगे. ठीक है. और एक आर्क हम नीचे बनाएंगे. समझ में आ रहा है सबको? बिना रेडियस चेंज किए इस कंपास को उठा के बी पे रखेंगे. कंपास बोल रहा हूँ मैं, कंपासेस बोलते हैं हम लोग, पर अभी शॉर्ट में कंपास से ही समझ लो. और फिर एक और आर्क हम ऊपर बनाएंगे. तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. और यहाँ पर हम दो पॉइंट के नाम दे देंगे. हमने नाम दे दिया एम और एन. क्या नाम दे दिया हमने? एम और एन. फिर बीच में स्केल रख के इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है. आप यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. ठीक है. कोई प्रॉब्लम किसी को? और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बीच में, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पी. क्या नाम रख दिया? पी. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उस लाइन पे आया है ए बी पे. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बोलो. No, sir. ओके. अब आपको क्या करना है? पी पे जाके, पी पे जाके, एक सेकंड. अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया था. एक गड़बड़ हो गई है. ये जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ना, इसको इरेज कर दो. जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था इसको इरेज कर दो खाली. और जो आपका पॉइंट बी था ना, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो. उसको 1 सेंटीमीटर आप एक्सटेंड कर दो. तो एक पॉइंट आप मार्क करो यहाँ पे सी. एक और पॉइंट आपने मार्क करना है जिसका नाम होगा सी. ठीक है. साइड में हम लिखते भी जाएंगे बेटा. मान लो हमारा अंडर रूट एक्स बनाना था हमने, यानी अंडर रूट 5.8 बनाना था हमने. अब मैं एक्स भी पैरेलली लेके चलूंगा ताकि सबको समझ में आए, कोई कंफ्यूज ना हो. मैंने एक्स को लिया है 5.8 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए बी मेरा कितना है बच्चों? एक्स. ए बी मेरा कितना है? एक्स है. X. सर हाँ बोलो बेटा. सर हम 5.8 की जगह 6.8 लेंगे अब. नहीं नहीं नहीं, पहले 5 पॉइंट, आप अब उस नंबर्स में मत जाओ. आप ऐसे समझो कि आपने ए बी लिया 5.8 सेंटीमीटर, फिर बी सी आपने लिया 1 सेंटीमीटर. अगर वो 5.4 भी होता तो भी आप 1 सेंटीमीटर ही लेते. आप 6.8 को मत समझो. आप ये समझो कि बी सी आपने 1 सेंटीमीटर लिया. बी सी कितना लिया आपने? 1 सेंटीमीटर. हाँ. उसके पहले जो भी लाइन थी वो तो एक्स हो गई. उसके बाद की जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया सबको? यस सर. यहाँ पैरेलली ऐसे एक ब्लॉक बना के लिखना भी शुरू कर दो. ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर है सबको? सबसे पहले हमने क्या किया? ए बी ड्रॉ किया x सेंटीमीटर. फिर हमने बी सी ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने कंपास को रखा ए पे. कंपास को रखा ए पे, मोर देन हाफ लिया और एक आर्क ड्रॉ करी ऊपर और एक आर्क ड्रॉ करी नीचे. सर मोर देन हाफ हम अंदाजन लेंगे. हाँ, अंदाजे से लोगे.
ओके सर। मोर देन हाफ अंदाजे से लोगे आप। इतना अंदाजा सबको हो जाता है। फिर बिना रेडियस चेंज किए आप सी पे जाओगे और एक आर्क नीचे बनाओगे और एक आर्क ऊपर बनाओगे जो प्रीवियस आर्क को 2 पॉइंट पे काटेगी, जिसका हम नामकरण कर देते हैं एम और एन। हमने इसका नाम कर दिया एम और एन, और फिर हमने एम और एन को ज्वाइन कर देना है। सब लोग अब एम और एन को ज्वाइन कर दो और मान लो कि एम एन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ओ। क्या नाम दे दिया हमने? ओ। अभी तक मैंने 5 पॉइंट गिनाए हैं। सबसे पहले मैंने ए बी बनाया x सेंटीमीटर, फिर मैंने बी सी बनाया 1 सेंटीमीटर, फिर मैंने ए सी को बाइसेक्ट किया, 2 पॉइंट्स मिले मुझे एम और एन। जब मैंने एम और एन को ज्वाइन किया तो मुझे एक और पॉइंट मिला ओ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। बना लिया सबने? सर बाइसेक्ट करने के लिए हम लेंथ एसी की लेंगे अब? हाँ, ए सी को बाइसेक्ट करना है बेटा। ओके सर। एसी को बाइसेक्ट करना है हमने। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ को सेंटर मान के और ओसी को रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पर कुछ गड़बड़ क्यों होगी मेरी? अच्छा, आप लोग ड्रॉ करो, आपका सही आएगा। मेरा भी सही आ गया। ओ को सेंटर मान के ओसी को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जो ए और सी को इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अब कंपास का खेल खत्म हो गया। अब कंपास की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक तरफ ध्यान से देखना बच्चों। मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लेंथ्स को हम देखते हैं अलग से, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या बनाया, ए बी कितना था, x सेंटीमीटर। फिर हमने बनाया बी सी, कितना था, x प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर हमने नहीं, फिर बी सी बनाया 1 सेंटीमीटर। बी सी कितना बनाया हमने, 1 सेंटीमीटर। फिर हमने ए सी को लेंथ किया, ए सी हो गया बेटा x प्लस 1 सेंटीमीटर। फिर हमने ए ओ बनाया, ध्यान से देखना, ए ओ कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 1/2। यही होगा कि नहीं होगा? ए ओ कितना है, x प्लस 1/2, क्योंकि ओ सी कितना हुआ, ये हमने बाइसेक्ट किया ना, ए सी का हाफ है ना ए ओ। बताओ मुझे, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए ओ है ना। तो ए सी कितना था, x प्लस 1/2। तो ये x प्लस 1 था ए सी, तो ये x प्लस 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, ए ओ। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां से अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ओ सी कितना है, यहां से यहां की लेंथ कितनी है, तो आप देखोगे कि ओ सी भी आपका x प्लस 1/2 है। समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमी सर्कल बना है हमारा, इस सेमी सर्कल पे कोई भी पॉइंट, इस सेमी सर्कल पे कोई भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ओ से, कितनी होगी वो, x प्लस 1/2। समझ में आ रहा है सबको? इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसका रेडियस कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी ओ से, x प्लस 1/2। सबको क्लियर है? क्योंकि इसी रेडियस का मैंने सर्कल बनाया है। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। कोई डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? दिया, मेहर बताओ, कोई डाउट है किसी को? No. ओके, चलो अभी ध्यान से देखना। मुझे बच्चों बताओ कि ओ बी कितना होगा।
ओपी होगा बच्चों ओसी माइनस बीसी, यही होगा। अगर मैं ओ से लेके सी में से मैं बीसी माइनस कर दूं तो मेरा ओसी आ जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? ओ से लेके जो सी की लेंथ है Yes, sir. इसमें से मैं बी सी माइनस कर दूंगा तो मेरा ओ से लेके बी की लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है सभी को? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओ बी कितना है तो आप बोलोगे ओ सी माइनस बी सी। ओ सी कितना है? एक्स प्लस वन बाई टू माइनस वन। सो दिस विल बिकम एक्स प्लस वन माइनस टू बाई टू। एलसीएम लोगे वन बाई वन और टू का तो ये टू हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू। तो हमें ओ बी मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल गई हमें x माइनस वन बाई टू। क्लियर है सभी को? मैं यही आप लोगों को बता रहा था। तो हम क्या करेंगे, b से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। b से क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें ये चाहिए कंपास। ध्यान से देखना। तो B पे हमने रखा और यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी। हमें नहीं पता किसी भी पॉइंट पे टच करेगी। और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे Q। क्या रख देंगे नाम? Q। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे OQQ। किसको ज्वाइन करेंगे? OQ। मुझे बताओ बच्चों OQ कितना है? x प्लस वन बाई टू। बेस कितना है? OB कितना है? x माइनस वन बाई टू। बेस कितना है हमारा? x माइनस वन बाई टू। तो ये BQ कितना हो जाएगा? रूट x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि एक ट्रायंगल का अगर हाइपोटेन्यूज x प्लस वन बाई टू हो जाए, बेस x माइनस वन बाई टू हो जाए, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो रूट x होता है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? रूट 5.8। अब हम इसको नापेंगे कैसे? तो हम यहाँ से कंपास को लेंगे, इस रेडियस को लेंगे और बिना चेंज किए इसको नाप के हम बिना चेंज किए इसको ओ पे रखेंगे और इसके बाद हमें कंपास को घुमाना पड़ेगा और हम एक आर्क काट देंगे। और जो आर्क काटेंगे अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो कितने पे आनी चाहिए? 2.4 पे। देखो आई है कि नहीं आई है? ध्यान से देखो, मेरी तो आ गई भाई। सर आर्क कहाँ से काटना था? ए से बेटा, जीरो से, जहां से नापना शुरू किए थे आपने। नहीं सर, रेडियस कितना लेंगे? रेडियस ये BQ रेडियस लोगे ना? रेडियस तो BQ लोगे। देखो कैसे लेते हैं, फिर से देख लो। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। रेडियस का कंपास का एक हिस्सा B पे रखेंगे, दूसरा हिस्सा Q पे रखेंगे और फिर बिना हिलाए कंपास को लेके जाएंगे A पे और A पे ले जाने के बाद एक आर्क काटेंगे ऐसे। ओके सर। और एक आर्क जहां पे काटेगी उस पॉइंट को नाम दे देंगे x। क्या नाम दे देंगे? x। तो AX कितना हो जाएगा? अंडर रूट x, यानी अंडर रूट 5.8। अंडर रूट 5.8 कितना होता है? 2.4 मैंने निकाला था कि नहीं निकाला था? अब इस पॉइंट को जूम करके देखो सब लोग अपनी अपनी, उसमें तुम्हें तो जूम करने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने स्केल से नाप लो। देखो सबका 2.4 आना चाहिए, मेरा तो आया है। देखो ध्यान से, ये 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है। सर मेरा 2.3 आ रहा है। कोई बात नहीं, चलता है उतना। पेंसिल की मोटाई से फर्क पड़ सकता है। 2.3 भी बहुत अच्छा है। दिया आपका कितना आया? Sir, I'm doing. You are doing it. Sanvi, I'm still doing it. you are also still doing it. Okay. So I'm waiting for all of you. सर इसके स्टेप्स लिखवा दो एक बार। हाँ हाँ अभी लिखवा दूंगा बेटा, एक बार बना दो। लो आपने तो बना लिया, बाकी देवियों ने भी नहीं बनाया, सज्जन ने बना लिया। भाइयों बहनों, ये बहनों नहीं, बहनें बहुत धीरे हैं हमारी।
मेहर दिया, मेहर ने लिख लिया होगा, मेहर ड्रॉ कर लिया आपने? ओके, मेहर ने गाय की तरह ऐसे ऐसे सर हिलाया। बनाओ, जल्दी बनाओ। मैं फिर से बोलता जाता हूँ, ध्यान में रख लो उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है। सबसे पहले हमने ए बी बनाया और उतने ही सेंटीमीटर का बनाया जितने का हमें स्क्वायर रूट चाहिए था। सबसे पहले हमने ए बी बनाया, फिर हमने बी सी बनाया 1 सेंटीमीटर का, फिर हमने ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो एक पॉइंट मिला हमें ओ, जो कि सेंटर पॉइंट था। ओ को सेंटर मानते हुए, ओ सी को रेडियस मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल के बाद हमने बी से, पॉइंट बी से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि इस सेमी सर्कल को क्यू पे काटता है। हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बी क्यू जो है आपका वही अंडर रूट एक्स है। वो कैसे है वो अभी समझा दिया जाएगा, वो समझाया भी है मैंने। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ओ बी क्यू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल ओ बी क्यू में जो हाइपोटेन्यूस है दैट इज एक्स प्लस 1/2 एंड जो बेस है दैट इज एक्स माइनस 1/2। तो अगर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो एक्स आता है। अगर हम उसके रूट की बात करेंगे तो वो रूट एक्स आएगा। हम बी क्यू को नाप के, किससे नापेंगे? स्केल से नहीं नापना है, स्केल से नहीं नापना है, बी क्यू को नापना है कंपासेस से। बी पे रखेंगे कंपासेस का नुकीला हिस्सा, क्यू पे रखेंगे पेंसिल वाला हिस्सा, बिना चेंज किए उसको ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे। ए पे रखेंगे, एक आर्क काटेंगे, जो आर्क कटेगी उस पॉइंट का नाम देंगे एक्स, और ओ एक्स हमारा, ए एक्स हमारा हो जाएगा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 5.8। और हमने देखा कि अंडर रूट 5.8 जो कि अगर हम देखें हम बना रहे थे अंडर रूट 5.76, तो 76 तो नंबर लाइन पे बनाना अपने आप में ही मुश्किल है। 5.7 तो बना सकते हैं, 76 कैसे बनाओगे? तो हम अंडर रूट, इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, अंडर रूट 5.8 ले लिया और हमने देखा अंडर रूट 5.8 इज इक्विवेलेंट टू 2.4 और वही हमारा आया भी है। किस किस का आ गया मुझे बताओ? मेरा तो आ गया। ओके, दिया, मेहर Yes, sir. आ गया, दिया, Yes, sir. Yes, sir. सानवी आ गया आपका? या ओके, मेहर का भी आ गया। तो इसके पहले कि क्लास अंत हो जाए मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आपने बनाना है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, 31 का स्क्वायर होता है 9.61। ओके तो आप लोगों को अब बनाना है 9.6 का अंडर रूट, ठीक है? अंडर रूट 9.6 बनाना है और जब आप चेक करोगे तो कितना आना चाहिए? 3.1। 3.1 ऐसे ही आप लोग बनाओगे 10.2 का अंडर रूट, ये आना चाहिए 3.2। अलग अलग बनाना, ये अलग बनाना, ये अलग बनाना। समझ में आ रहा है? या एनी डाउट? चलो आगे बढ़े। अब इसके स्टेप्स लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है? अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूं कि अपनी नॉर्मल हैंडराइटिंग में? बताओ। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब है टाइप करना। टाइप करना है कि ऐसे ही लिख दूं, समझ लोगे सब लोग? सर समझ गए। चलो पहला स्टेप, Sir, ड्रॉ ए sir, बी type. टाइप। ओके, या Yes. एक सेकेंड बेटा, ठीक है, टाइप ही कर देंगे बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले बच्चों लिखो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, पहला स्टेप, ठीक है? दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में एक्सटेंड नहीं, ड्रॉ ए सी नहीं बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तीसरा स्टेप फिर क्या किया था हमने? सर हाँ बोलो। सर ए बी की लेंथ तो 5.8 थी। अरे तो मैंने अब एक्स डाल दिया भैया, 5.8 की जगह पे वो 7.8 9.6 कुछ भी हो सकता है।
अभी x मतलब वो कोई भी वेरिएबल हो गया बेटा, कोई भी नंबर पे फॉलो करेगा ये। ओके सर। अभी आप 5.4 तक मत सीमित रहो, वो 9.1, 9.6, 10.2 किसी के लिए भी हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ड्रॉ नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे बाइसेक्ट, सॉरी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, ए सी टू इंटरसेक्ट ए सी एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, क्या नाम था उस पॉइंट का, P, बताओ, O, क्या नाम था पॉइंट का, O। ओ वेरी गुड। चौथा पॉइंट, फ्रॉम नहीं, विद O एज ए सेंटर, विद O एज ए सेंटर एंड रेडियस क्या लिया था हमने, OC as a radius, draw a semicircle, okay, to meet C and A। क्लियर है सभी को? अगला स्टेप क्या था हमारा, ड्रॉ BQ परपेंडिकुलर AB to meet semicircle at Q। समझ में आ रहा है सबको? फिर क्या था, ज्वाइन OQ, OQ हमने ज्वाइन किया था, विद B as center, measure BQ as radius, draw an arc from A as center and BQ as radius to intersect AB at X। AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AX √5.8। हाँ, एक सेकेंड, किसी को कोई डाउट? सबसे पहले हमने ए बी बनाया x सेंटीमीटर का, इसमें इस केस में क्या था, ये 5.4, ओके कुछ भी हो सकता है। फिर हमने इसको बनाया तो ये 1 सेंटीमीटर का था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने बनाया तो वो क्या हो गया हमारा, 5.4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है सबको? ओके। उसके बाद हमने O को ऐसे सेंटर और OC को रेडियस बनाया। तो OC जो रेडियस था हमारा, जो सेमी सर्कल था, इसमें रेडियस कितना था हमारा, 5.4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। BQ परपेंडिकुलर AB टू मीट सेमी सर्कल एट A,
तो बी क्यू हमारा कितना था, बी क्यू जो हमारा आया है ये √x आया है। ओ क्यू कितना है हमारा 5.4 प्लस 1/2, और फिर हमने इसको नापा, ये भी हमारा कितना हो गया √5.4। अब इसमें एक बात जो रह गई वो क्या थी कि जो ओ बी था आपका वो कितना था आपका 5.4 माइनस 1/2। ये पॉइंट्स अपने लिख लिए? यस सर। मेहर बेटा आपने लिख लिया? दिया आपने लिखा? इसको एक बार अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या बनाया, हमने ए बी बनाया, फिर हमने बी सी को एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर, फिर हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो कि ओ पे कटा, फिर हमने क्या किया, ओ को सेंटर मान के ओ सी को रेडियस बना के सेमी सर्कल खींचा जो ए और सी को इंटरसेक्ट करता है, फिर हमने बी से एक परपेंडिकुलर खींचा क्यू जो कि उस सर्कल पे क्यू पे कटता है, फिर हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया। मैंने आपको बताया जो ओ सी था वो कितना था x प्लस 1/2, तो ओ क्यू भी कितना होगा x प्लस 1/2। अगर यहाँ से ओ बी की बात करें हम, ये जो छोटा वाला पॉइंट है, तो ये कितना होगा x माइनस 1/2, क्योंकि x प्लस 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 2/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो बेस हमारा हो गया ट्रायंगल OBQ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेस हो गया x माइनस 1/2, हाइपोटेन्यूज हो गया x प्लस 1/2, तो परपेंडिकुलर आएगा √x। फिर हमने √x को नापा, कैसे नापा, हमने कंपास को ले जाके कंपासेस को ले जाके यहाँ पे हमने रखा ऐसे, और फिर हमने इसी कंपासेस को बिना हिलाए ओ पे रखा, और फिर हमने एक आर्क बना दी जो आर्क काटती है x पे। आप इस x की जगह p भी लिख सकते हो, इसको आप p भी लिख सकते हो। तो AP कितना हो जाता है, कन्फ्यूजन ना हो, AP कितना हो जाएगा √x, कितना आया था 2.4। क्लियर है सभी को? स्टेप्स भी मैंने लिखा दिए हैं, ये फाइल मैं सबको भेज भी दूंगा, आपको अपने अर्बन प्रो अकाउंट पे भी मिल जाएगी। दिया मैंने आपको 10 बार बोला आप मुझे फ़ोन करो, आप फ़ोन नहीं करते हो मुझे। मैंने नंबर भी दिया हुआ है, दिया इज़ नॉट कॉलिंग मी एनी टाइम। मेरे पास सभी का नंबर है, सबको मैं मैसेज भेज सकता हूँ, पर दिया को नहीं भेज सकता, अर्बन प्रो के थ्रू ही भेजना पड़ रहा है। तो अभी मत बताना, क्लास के बाद मेरा नंबर है तो मुझे कॉल करके या मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? अभी अलाउड नहीं है। ओके हाँ, इस चीज़ को मैं सेव कर रहा हूँ और सभी के अकाउंट में मैं भेज दूंगा आज की क्लास के नोट्स। पिछले वाले में शायद भेजना भूल गया, उसको भी मैं भेज दूंगा, ठीक है? इसके रिकॉर्डिंग देख लेना सभी बच्चों। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि सबको समझ में आ गया। आज की क्लास में हमने देखा कि इर्रेशनल नंबर सिर्फ √5 और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तक ही सीमित नहीं है, कैसा भी इर्रेशनल नंबर हो हम उसको बना सकते हैं। कैसा भी इर्रेशनल नंबर बनाए, चाहे उसमें डेसिमल भी घुसा हो। तो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देना है, फिर हमने पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर खींचना है जो कि ऊपर क्यू पे कटेगा, सेमी सर्कल को टच करेगा, फिर बी क्यू की लेंथ को नाप के एक ए से आर्क काटनी, आपका √x बन जाएगा। साबित कैसे करेंगे? वो जो परपेंडिकुलर जो आपका ट्रायंगल बना है, व्हाट सानवी, एनी डाउट? ओके चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। सभी बच्चों को बाय बाय, अपना ख्याल रखें, सब बात।